तो किसी को कोई इस बीच में किसी को कुछ पूछना है स्टार्ट करने से पहले तो पूछ लो, और आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग इट। सर एक चीज था, हाँ पूछो। वो कल वो प्रोग्राम करवाए थे, कोर्स जो करवाए थे, हाँ वो होगा क्या आपके पास? उसमें एक वीडियो में तो प्रॉब्लम है, थी। पूछो ना, नहीं, वीडियो तो है। उसमें ग्रामर 2 का प्रिंट कैसे होगा वो नहीं पता चल रहा। ग्रामर 2 का प्रिंट कैसे होगा? हाँ, वो इसीलिए पूछा ना कि कोड होगा क्या आपके पास, उसमें लिखा हुआ है तो। हाँ कोड तो होगा ही। अच्छा, तुम वो पूछ रहे हो, एस्केप सीक्वेंस पूछ रहे हो, है ना? जी जी जी, डज नॉट Okay. वाला। हाँ तो एस्केप सीक्वेंस को जो है हम और अच्छे से बता देते हैं तुमको, ठीक है। अ, एक मिनट जैसा रुकना, SABH। इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनको मैं पहले एडमिट कर दूं। सबरान मैं कैसे को होस्ट, ओके ठीक है। हाँ तो लूप जो escape सीक्वेंस होता है ना, उसमें /n/t ऐसा हम लोग लगाते हैं, \n, ताकि जो है हम लोग जब डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर रहे हैं तो escape सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग उसका यूज करते हैं। तो क्लास के बाद हम क्या करेंगे, तुम रुके रहना, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा, चलेगा? ओके। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है उसके सर। लिए कोई जरूरत, मतलब उसके लिए कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज लूपिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। इससे पहले तक के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब लोग हैंड रेज कर दो Hello. एक बार। हेलो। Oh yeah, I have one small doubt. Like I am joining from today. Like I was not in last 2 days classes, so it's व्हाई? okay. Or Why you were not there? Because like I I think want. you were messaging, I think you were dropping the email and messaging us consistently, like your No, ID has not been activated, and that's why. no. My idea was working. I went to Hmm. Mahakum. I just came yesterday, so Hmm. I joined from today. So is it okay or No like is it issues. no issues, right? Is it? It is okay, completely okay, no issues at all. It's completely up to you, like how you want to start. If you want to cover the whole things, then it's already uploaded over I the saw YouTube. You can go ahead and yeah. watch the videos there, and then you can continue the classes. But I will say, like the attendance will not be granted for the other two Yeah, days. 2 days fine. You allow for 70%, na? Mhm. So out of Yes, 100, so I will no issue, complete no issue. 70%. And Yeah. you can also watch the video, like some code updates are going on in the back end, like some people are not getting not able to mark the attendance at that time. So I'm expecting I'm expecting them to go ahead with the classes. एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अटेंडेंस का प्रॉब्लम को हम लोग अलग से सॉर्ट आउट कर रहे हैं जब तक कि सिस्टम अपग्रेड ना हो जाए, ठीक है। मैं कितना चीज देखूंगा, अगर मैं सिस्टम वाले लोगों के साथ बैठूंगा, मैं खुद उनके साथ डेवलपमेंट करने बैठ जाऊंगा, तो दैट इज वाई। It's okay. It's totally fine. And one more time, like my college, like they have some OGT program on job training, ओके। and they are ओके। asking for if you're doing some like 3 months internship and something. So they want यस। to submit the 1 week, at least 4 weeks, a हम्म। report about हम्म। me, like what I'm doing, what I'm learning new. So ओके। it is possible. So you can like Yes, after the yes, yes. It is completely okay. It is completely okay because Support Foundation and Project DevOps is a registered organization, and the certificate is totally valid over the India, all over the India. Means like, so whatever the certifications we are providing, we are closely attached with MSME and Skill India as well. So we are fully authorized by the government organizations, so don't worry at all at that time. yeah. So you Apart just have to drop an email, for a training opportunity, you just have to drop an email at training@projectdevops.in. okay. And And apart just from drop their certification, can I get the like my like review card like out of 20? They asking for you review about me Mhm. and give some feedback like what I did, what I Yes, learned, and we will in be a giving it letter, completely, no issues at all. in No a issues letter. at all.
No issues at all, Dharmendra. These things like for we are doing for our students. Like हम सब लोग जो है आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ ये चीज लोगों को जो है ना, जब चीजें फ्री में मिलती हैं तो लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अगर चीजें सही से हों तो चीजों का वैल्यू होता है, ठीक है. Right, it's worth it. Yeah. Thank you. Yeah. So Thank just you go so ahead and drop your email over the concern and discuss discuss the captions as well, like whatever you have discussed with me there in the email, and they will reply to you. Okay, That okay. Thank department is closely different, completely different. you. So let's go ahead and let me start. और किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? पक्का सबका सही है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट से, लाइक लूपिंग स्टेटमेंट नहीं, इफ एल्स के स्टेटमेंट से. तो main2.py एक नया फाइल बनाते हैं हम लोग. चलो ठीक है, और सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? चलो, और भी लोग अभी तक ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जैसे हम लोग वाइल का यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, इफ और एल्स का यूज करते हैं, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसको कहते हैं, ठीक है. तो अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कंट्रोल फ्लो, तो जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ और एल्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इफ और एल्स का यूज करते हैं, लैडर स्टेटमेंट्स का भी यूज करते हैं. तो एल्स इफ यूज होता है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में सी में या सी प्लस प्लस में, आई थिंक सी का मुझे याद है एल्स इफ करते हैं या फिर ऐसा. तो पाइथन में लैडर के लिए हम लोग एल इफ यूज करते हैं, एल्स इफ को सॉर्ट करके एल इफ किया गया है. तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, देखो ये कैसे काम करता है, ठीक है. x इज इक्वल टू int इनपुट, प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है. यहाँ पर यूजर नंबर एंटर करेगा, ठीक है. इसके बाद कोई भी इंटीजर एक इफ का केस बनाते हैं हम लोग. इफ x इज लेस देन 0, अब हो सकता है इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इट्स ऑल्सो एन इंटीजर. और लाइक इंट इंट तो हम लोग 0 से 9 ही वो करते हैं यहाँ पर, लेकिन कहने का मतलब इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 हो जाए. अगर कोई यूजर जो है x का वैल्यू 0 से लेस इंटर करेगा, तो x का वैल्यू 0 हो जाए. हम लोग ऐसा बना रहे हैं, ये सिस्टम कर रहे हैं कि x विल इफ x विल बी लेस देन 0, देन x विल बिकम 0 एंड वी विल प्रिंट नेगेटिव is change to 0. ओके, इसके बाद एक और केस बनाते हैं हम लोग लैडर का, एलिफ, जिसको हम लोग एल्स इफ भी बोलते हैं. तो हम लोग यहाँ पर एलिफ लिखते हैं. एलिफ x इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट x integer is already 0, integer is already 0, ठीक है. एक और हम लोग एल एफ का केस बनाते हैं, ठीक है. एल एफ x इज इक्वल टू 1. ये कल सबको पता चल गया था ना कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ये किसी को x इक्वल टू और x डबल इक्वल टू में अंतर समझना है तो बता दो. सबको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और बाकी सब लोगों को पता है ना? यस सर. ठीक है, चलेगा. किसी को नहीं पता हो तो अच्छा, नीरज तुम्हें नहीं पता है. तो क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है. दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं, है ना. और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू को हम लोग चेक करने के लिए करते हैं ये. एंड एक मिनट, जैसा मैं कुछ लोगों को और इंटर कर दूं, इंतजार कर रहे हैं. सो हम लोग क्या करते हैं कि डबल इक्वल टू को कहते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर,
ठीक है, और इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब x इज इक्वल टू 1 होता है, जब x इज इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग x का वैल्यू 1 असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जब x इज डबल इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर x का वैल्यू, guys, please don't do this, I'm just requesting you all, please, it completely distract us, सिर्फ मुझे नहीं सभी लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है फिर। तो x जब डबल इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर चेक कर रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू 1 है या नहीं, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, x will be, x is integer is 1, हो गया। ये बेसिक लैडर स्टेटमेंट हम बताए हैं, इस प्रोग्राम में कुछ भी लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट वी आर डूइंग समथिंग। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, ठीक है, क्या आता है, ठीक है, चलो क्या आएगा आंसर बताओ। 0। 0 होगा। निगेटिव सर। नहीं आएगा निगेटिव। क्या किए हम लोग पहले ऊपर, इफ अगर x का वैल्यू हम लोग से ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं, x का वैल्यू 0, अगर कोई यूजर x का वैल्यू लेस देन 0 डालता है, -9, -10, -11 देता है, तो वो वैल्यू को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, उस वैल्यू को -9 को हम लोग अपडेट कर दिए 0 से, तो अब x का वैल्यू हो गया 0। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आंसर लिखे प्रिंट निगेटिव इज चेंज टू 0, इसीलिए यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट भी करके दिखा सकते हैं, चेंज हुआ या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, देखो, चलो अब फिर से प्रिंट करते हैं एक बार, -9 0, ठीक है। पता चल गया कि अंदर x के अंदर क्या है, हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि डबल एल इफ का चेक करने का जरूरत है, एल इफ्स को तुम समझ गए होगे कि किस तरीके से करना है। दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, अच्छा इफ और एल्स का क्या है, एक और चीज समझने का जरूरत है कि इफ जो है सिंगल जो है नेस्टेड सिस्टम के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेस्टेड जब लूप बना, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इफ को मल्टीपल टाइम तुम नेस्ट भी कर सकते हो। नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक इफ केस के अंदर, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर तुम मल्टीपल अलग अलग इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ को तुम रिटर्न भी कर सकते हो, अगर इफ का वैल्यू ये है तो प्रिंट के जगह पे तुम रिटर्न भी कर सकते हो। इफ x इज इक्वल टू 1, कल तो मैंने बताया भी, कल शायद रिटर्न का नहीं बताया था, तो इफ x इज इक्वल टू 1 रिटर्न दिस, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिटर्न होने का शुरू हो जाता है, तो तुम प्रिंट के जगह पे रिटर्न का वैल्यू भी यूज कर सकते हो। अब एक और चीज है फॉर स्टेटमेंट, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बीच में प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, क्योंकि मैं मैसेजेस ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अब एक हम लोग फॉर स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर एक लूपिंग स्टेटमेंट है ना। फॉर स्टेटमेंट जो है पाइथन में बहुत अंतर है, पाइथन में बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू सी, पास्कल और कोई भी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। और लाइक गिविंग द यूजर the ability to define both the iteration step and halting condition. तो पाइथन का फॉर स्टेटमेंट इज लाइक इटरेट्स ओवर द आइटम। तो पाइथन में फॉर का स्टेटमेंट क्या होता है कि ये पर्टिकुलर आइटम के ऊपर इटरेट करता है, ट्रेवर्स करता है, और इसके बाद वो लिस्ट ऑफ, अगर स्ट्रिंग है और या फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर है या फिर कोई भी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट है या फिर स्ट्रिंग है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसके ऊपर लूप करना शुरू करता है, उसके ऊपर बारी बारी से 1 से फिर 2 पे, 0 पे जाएगा इंडेक्स, 2 पे जाएगा इंडेक्स, 4 पे जाएगा इंडेक्स, लाइक दिस इंडेक्स। तो देखते हैं कि फॉर काम कैसे करता है। तो एक हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1, ठीक है। इस लिस्ट में हम लोग एक कैट देंगे, ठीक है, इसमें डॉग देंगे, ठीक है, और इसमें एलिफेंट देंगे। सॉरी, एक चीज बताओ, कल तुम लोगों को बताया था, अभी जो है अभी क्विज भी आता होगा,
Sabrant, can you please make the quiz ready and push them whenever I will tell you. Hello Sabrant, are you online? Yes, sir. Okay. Okay, sir. हाँ, so ठीक है, तो लिस्ट है। अब बताओ मुझे ना इस लिस्ट को प्रिंट करना है, और लिस्ट को प्रिंट तो करना है, साथ में क्या करना है, कोई जिसको नहीं आता है, जिसको आता है प्लीज वो मत बोलना, जिसको नहीं आता है उससे मैं आइडिया लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है उसमें मुझे ये बताओ कि मुझे ना एलिफेंट का कितना लेंथ है, इस लेंथ का, ये जो है ना, ये इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, इसके लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है, ये वर्ड है एलिफेंट, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसका मुझे ये भी प्रिंट करना है, लेंथ भी प्रिंट करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा बताओ। जिनको नहीं आता है कोई दिमाग लगा रहा है? कल हम पढ़ाए थे, लिटरली हम कल पढ़ाए थे। कल हम लेंथ फंक्शन का नाम बताए थे, याद है? len, Yes. ठीक है। यस तो सर, एक लूप, हाँ, तो एक हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा पता है पाइथन में क्या है, तुमको ना कभी भी तुम वेरिएबल को किसी भी समय इनिशिएट कर सकते हो, until and unless if you will assign them to a proper context, ठीक है। अगर w का यूज नहीं होगा, या फिर मान के चलो किसी वेरिएबल का यूज नहीं होगा, तो इट विल आल्सो पॉप अप एन एरर और वार्निंग लाइक दिस थिंग। कभी कभी एरर भी आ जाता है, कभी कभी वार्निंग्स भी आ जाते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इनिशिएट करते हैं यहाँ पर वेरिएबल फॉर w इन WORDS वर्ड्स, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर मेरा ये है लिस्ट 1, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर ये है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे w और लेंथ ऑफ w। चलो चलो इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 का वैल्यू आ गया ये, कैट, डॉग और एलिफेंट। दिखा किसी को कुछ पता चला? कैट का लेंथ क्या था? 3। डॉग का लेंथ क्या था? 3। एलिफेंट का लेंथ क्या था? 8। यहाँ पर सर ये व्हाट इज W? W हम वही बता रहे थे कि पाइथन में एक तुमको सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पावर मिलता है कि तुम किसी भी वेरिएबल को कभी भी इनिशिएट कर देते हो। तो W जो है एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके ऊपर तुम इटरेट करोगे। तो W एक वेरिएबल बना दिए, ठीक है, और इस वेरिएबल को W एज ए वेरिएबल लिया, और ये W जो है इसके ऊपर इटरेट करना शुरू किया, ठीक है। तुमको इटरेट करने के लिए जैसे कुछ चाहिए होगा ना, कि किससे तुम इटरेट करवाओगे, कोई मोड तो चाहिए होगा। तो W जो है इन लिस्ट 1, तो फॉर एक लूपिंग कंडीशन है, लूपिंग स्टेटमेंट है। तो हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसको समझने का क्या है, कि ये तरीका समझो कि लिस्ट 1 का वैल्यू ये था, कैट, डॉग और एलिफेंट। W एक तुम्हारा वेरिएबल था, और इस वेरिएबल को लेके तुम लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना शुरू किए, यानी कि W का वैल्यू तुम चेक किए, W का वैल्यू तुम्हारा कैट में 1 आया, 0 पे 1 आया, कैट आया। W का वैल्यू 2 पे जो है 1 पे तुम्हारा डॉग आया, W का वैल्यू 2 पे एलिफेंट आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर W का वैल्यू असाइन हो गया, हम लोग लिस्ट से निकाले। इसका लेंथ ऑफ W, तो W जब कैट था तो इसका लेंथ क्या था? 3। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी भी? सर W इज प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड? यूजर डिफाइंड, कंप्लीटली यूजर डिफाइंड है। तुम इसको कुछ भी कर दो। तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांशु। क्या रन होगा बताओ, बाकी लोग बताओ। होगा। सर होगा। ये वेरिएबल ही तो है, होगा सर। वेरिएबल ही तो है, प्री डिफाइंड थोड़ी ना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कि वही तो मैं समझा रहा था कि बाकी में क्या करना पड़ता, कि तुम उसी समय जो है उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। बाकी जावा में या फिर बाकी जगह पे अगर तुम लोगों ने किया होगा प्रोग्राम, तो वो इनिशियलाइजेशन तुमको टॉप ऑफ द स्टेटमेंट्स करना पड़ता है। जब तक तुम उसको डिफाइन नहीं करोगे तब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे। जैसे कि फॉर स्टेटमेंट लगाते थे, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस until and unless, और x जो है किस तरीके से बढ़ेगा, और इसके बाद एक स्टॉप स्टेटमेंट लगाते थे। तो यही चीज है सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहीं पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पावर है पाइथन का।
ठीक है, ओके चलो, सर। है ना। तो अभी और भी चीज पे आएंगे, एक बेसिक सा और चीज बनाते हैं हम लोग। एक यूजर बनाते हैं, ठीक है, एक यूजर का हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है। तो एक हम लोग सैंपल कलेक्शन बना रहे हैं। कलेक्शन मींस लाइक अ डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी किसी को नहीं, जिसको नहीं आता है वो टेंशन मत लेना। अभी हम जैसे इनिशिएट कर रहे हैं, तुमको हम बता रहे हैं कि फॉर लूप कैसे यूज करना है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द अदर थिंग। सब पे कोई कंसंट्रेशन मत करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप पे कंसंट्रेट करना, ठीक है। यूजर एक बनाया, ठीक है, और कहे कि अभिज्ञान यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है। मनीषा इज लाइक इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये रन हो गया। सब्रांत यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, एक कलेक्शन है, ठीक है, इस डिक्शनरी। और डिक्शनरी इज नथिंग बट इट्स अ की वैल्यू पेयर। ये की है, अभिज्ञान का की ये है, अभिज्ञान इज अ की, इसका वैल्यू एक्टिव है। मनीषा इज अ की, इसका वैल्यू इनएक्टिव है। और सब्रांत इज अ की, इसका वैल्यू एक्टिव है। अभी बस इतना ही समझ लेना, ये डिक्शनरी है और एक तरीके से ये की वैल्यू पेयर है, ठीक है। अब बताते हैं कि अब जो है एक्टिव और इनएक्टिव जो लोग हैं उसका जो है हमें पता करना है कि कौन कौन से लोग इनएक्टिव हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट से, मेरा प्रोग्राम का टारगेट ये है, देखो हम छोटा छोटा ना तुमको प्रोग्राम भी बताते जा रहे हैं, सिर्फ हम तुमको इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, छोटा छोटा बेसिक प्रोग्राम भी बताना चालू कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम हायर लेवल के प्रोग्राम्स पे भी जाएंगे कि किस तरीके से प्राइम नंबर या प्राइम जीसीडी निकालना है, ये सब चीज भी हम तुमको पाइथन में बताते जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हमको इटरेट करना है इसके। अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में आना, क्लास ले रहे हैं भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यूजर जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इटरेट कर रहे हैं, और हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि एक सैंपल कलेक्शन, ये हमारा कलेक्शन था। अच्छा, हम तुम लोगों के लिए लिख भी देते हैं, सैंपल कलेक्शन, कलेक्शन एज डिक्शनरी, ठीक है। यूजर ये है हमारा डिक्शनरी। अब इसमें से स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग एक कॉपी करेंगे आइटम, कॉपी एक फंक्शन होता है, ठीक है। आइटम्स भी एक जो है डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कंप्लीटली जो है क्या करेंगे कि हम लोग एक कॉपी बनाएंगे इस कलेक्शन का, उसके ऊपर हमको बिना इस यूजर के कलेक्शन को डिस्टर्ब किए एक नया कलेक्शन बनाएंगे, जिसको कॉपी स्टेटमेंट के थ्रू कॉपी करेंगे। और उसका जो है अगर कोई भी इस में से इनएक्टिव यूजर होगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो देखो ये कैसे होगा, ठीक है। फॉर यूजर, क्यों, ये एक यूजर एक कलेक्शन था, ठीक है, ये भी मेरा यूजर डिफाइंड था, प्री डिफाइंड नहीं था, ठीक है। तो फॉर यूजर स्टेटस, एक हम लोग स्टेटस बना रहे हैं यहाँ पर, ये भी जो है यूजर डिफाइंड है, यहीं पर इनिशिएट कर रहे हैं। फॉर यूजर एंड स्टेटस इन यूजर्स, सॉरी इसका नाम यहाँ पर यूजर्स दे देते हैं, ठीक है। फॉर यूजर और इसका स्टेटस, तो यूजर अभिज्ञान हो गया, स्टेटस एक्टिव हो गया, यूजर मनीषा हो गया, यूजर इसका स्टेटस इनएक्टिव हो गया। तो क्या है कि फॉर यूजर और स्टेटस, यहाँ पर दो वेरिएबल हम लोग बनाए, फॉर यूजर एंड स्टेटस इन यूजर्स। यूजर्स मीन्स ये पूरा कलेक्शन, ये लिस्ट होता या फिर कोई भी कलेक्शन होता, जो भी चीज होता, टपल होता, सेट होता, तो ये कुछ भी हो सकता था ये, लेकिन अभी हमारे केस में ये डिक्शनरी है। तो फॉर यूजर स्टेटस इन यूजर्स डॉट एक कॉपी फंक्शन हम लोग करेंगे जो कंप्लीटली कॉपी कर देगा। और ये देखो हम आगे भी बताएंगे डीप कॉपी और सैलो कॉपी। किसी को पता है डीप कॉपी सैलो कॉपी का मतलब, पढ़े हो? नो सर। नो सर। ठीक है, डीप कॉपी और सैलो कॉपी बताएंगे, हाँ ठीक है। हाँ, तो अब बताओ कि अब किसको पाइथन आता है अच्छे से? जितने लोग बोल रहे थे, प्रताप पानीग्राही, एक बंदा जो है बोला है डीप कॉपी और सैलो कॉपी आता है बस, है ना, 85 स्टूडेंट्स में से।
तो थोड़ा सा बेसिक्स भी ध्यान पे रखना है और इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। तो डीप कॉपी और सैलो कॉपी का डिफरेंस होता है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग एक नॉर्मल कॉपी बना रहे हैं, एक आइटम्स है, यानी कि अब हम कॉपी कर रहे हैं, एक कंप्लीटली एक कॉपी बना रहे हैं इसका। और कॉपी सिर्फ और सिर्फ बना तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर के चीजों को भी कॉपी कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर के वैल्यू कॉपी कॉपी कर रहे हैं। और अब इसमें तुमको बताए थे ना, इफ का यूज कर रहे थे, ठीक है। चलो ऊपर वाले को ना हम जरा सा कमेंट कर देते हैं। किसी को ये कोड्स चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा इन कोड्स को फाइल बनाकर, तुम लोग उसको रिवीजन के लिए देख सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इस वीक के बाद पाइथन का तुम्हारा जितना भी पढ़ाया हुआ है वो सारा नोट्स मिल जाएगा, वो मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड इट। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशंस जो है हम लोग क्लाउड पे और डेवऑप्स पे जब उतरेंगे आएंगे, तो फिर वहां पर तुमको जो है बाकी सारा नोट्स जो है करेंट डे पे मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। यस तो सर। फॉर ठीक है, सर तो मुझे फॉर यूज नोट्स, सर मुझे कोड चाहिए था जो आप लिख रहे हो ना, वो वाली। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अच्छा, तो एक चीज मैं भूल गया, इसी बीच में टाइम हो रहा है, सबरांत क्विज पोस्ट करो। अगर तुमने आज वाले टॉपिक पे क्विज निकाल लिया है तो सब लोग 1 मिनट, सबरांत जब तक तुम लिख लियो तो जब मैं बोलूंगा तब पोस्ट करना। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे आ जाओ, मीन्स लाइक ऑन योर सिस्टम लाइक दिस वन। तो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे आ जाओ यहाँ पर। सब लोग आ गए? बारी बारी से सब बता दो, सब लोग आ गए? यस सर। यस यस सर। ठीक है, हम यस किसी को सर। फिर वो नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम जो है क्विज पोस्ट करवाएंगे, ठीक है। सब लोग अगर आ गए हो, सब लोग खोल लिए हो, तो हम क्विज पोस्ट करवा रहे हैं। रिफ्रेश करना है साइट को। Sorry, then first of all you will have to log in and log out and log in, and then you will have to come over this one, this link. तो साइट तुम रिफ्रेश करो या फिर लॉग आउट करके लॉग इन करो, जल्दी करो प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो सब लोग रेडी हो? सबरांत आर वी रेडी? सबरांत आर वी रेडी? हेलो सबरांत? म्यूट पे बोल रहे हो शायद सबरांत तुम। क्विज पोस्ट कर दो। Sabrant, are you posting the quiz? Okay, guys, I think he is having some network problem. No issues. जितने लोग हैं यहाँ पर, आज क्विज कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आज क्विज कैंसिल कर देते हैं और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। जितने लोग हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली 86 स्टूडेंट्स हैं। मुझे जब मैं पॉल डालूंगा, अभी तक जो लोग सुन रहे हैं 86 स्टूडेंट, वो पॉल पे आंसर करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। ये 86 के 86 उस पॉल पे यस और नो में चाहिए, ठीक है। गॉट इट? चलेगा? पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, छोड़ो, ठीक है। और ये 86 के नंबर्स चाहिए, है ना। अब जैसे जैसे देखो 86 से 83 हो गए, तो 3 लोगों ने लीव कर दिया, नो इश्यूज एट ऑल। नुकसान तुम्हारा भी है इसमें, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फॉर यूजर्स इन यूजर स्टेटस। हम लोग बता रहे हैं कि यूजर का स्टेटस भी देख। कब होगा? क्या? पॉल पॉल टेस्ट। पॉल टेस्ट कौन सा होता है हमारे यहाँ? नहीं, मतलब आप कह रहे थे ना कि अभी मैं पॉल पॉल भेजूंगा एक, यहाँ पर उसका अटेंडेंस मार्क करने के लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो। और जो अभी जो क्विज है वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सबरांत के साथ, ठीक है। जी। तो माइट बी ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू पोस्ट द क्विज। अब मैं क्विज पोस्ट करूं या फिर तुम्हें पढ़ाऊं, दैट्स व्हाई थोड़ा कोऑपरेट कर लो गाइस। इस वीक बस पहला वीक स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर जब चीजें अच्छी चलने लग जाएंगी तो फिर चलेगा। और हमको अच्छा लग रहा है कि तुम लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, तो पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कर रहे थे फोकस अपने काम पे, ठीक है। फॉर यूजर स्टेटस इन यूजर्स, यूजर्स ये यूजर था हमारा कलेक्शन, इसको क्या किए, कॉपी किए। कॉपी
एक कलेक्शन कॉपी किए और कलेक्शन के अंदर जो आइटम्स थे उनको भी कॉपी कर लिए। और यूजर और स्टेटस क्या है हमारा, कोई बता सकता है? वेरिएबल है। की और क्या वैल्यू, बोले? की और कीवर्ड्स यूजर, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड नहीं है वैल्यू ये, सर की और की और यूजर वैल्यू है। हाँ की और वैल्यू है। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया लोगों को, चलो ठीक है। अब हम इसमें और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जोड़ेंगे। और आया, म्यूट कर लो। इफ, अब इसमें हम एक स्टेटस इफ का कंडीशन लगा रहे हैं। इफ स्टेटस इज इक्वल टू इनएक्टिव, क्या कह रहे हैं हम लोग कि स्टेटस का वैल्यू इसके अंदर, यूजर और स्टेटस बनाए थे तो यूजर की था, यूजर में जो है यूजर वाज अ की, है ना, और वैल्यू था एक्टिव, यूजर इज मनीषा एंड वैल्यू इज इनएक्टिव। तो यूजर और स्टेटस का जो की था हम लोग का, ये हम लोग बनाए। और इस यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं कि इफ स्टेटस इज डबल इक्वल टू इनएक्टिव, मींस लाइक इक्वलिटी ऑपरेटर के थ्रू हम लोग चेक कर रहे हैं कि जिसका जिसका स्टेटस इनएक्टिव है, हम लोग एक डिलीट फंक्शन यूज करेंगे। डिलीट इज अ फंक्शन, ये याद रखना, यूजर्स ऑफ यूजर। ये जैसे तुमको बताए थे ना इटरेट करने का सिस्टम, कल जो तुम लोगों को बताए थे इस वाले में, यहाँ पर 0 1 2 जो इटरेट करते थे, ट्रेवर्स करते थे कि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 पे क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 3 पे क्या है, तो 4 है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर यूजर्स के थ्रू यूजर पे इटरेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर सारी जगह पे इटरेट करेगा और मैच करेगा कोड कि जिस जिस का स्टेटस इनएक्टिव होगा उनको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा इस प्रोग्राम के बाद पूछ लेना, मैं बताऊंगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एल्स स्टेट इफ केस आ गया। ठीक है, अब एक और हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं फॉर। अब एक हम लोग नया एक कंप्लीट डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग, लेकिन याद रखना कि हम लोग इस वाले में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव यूजर्स का एक नया डिक्शनरी बना लिया है। डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते हैं डबल ये कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, तो कोई भी डिक्शनरी इनिशियलाइज होता है कर्ली ब्रेसेस से, लिस्ट इनिशियलाइज होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, और टपल इनिशियलाइज होता है नॉर्मल जो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं इस वाले से। ठीक है, नॉर्मल ब्रेसेस से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया डिक्शनरी बना रहे हैं फॉर यूजर स्टेटस, सेम चीज लिख रहे हैं यहाँ पर, स्टेटस इन यूजर्स डॉट एक्टिव फॉर यूजर स्टेटस इन यूजर्स डॉट एक्टिव, सॉरी यूजर्स डॉट आइटम होगा। यहाँ पर एक हम लोग नया आइटम बनाए थे ना, आइटम्स। ठीक है, इस यूजर से यहाँ पर जब हम लोग डिलीट कर दिए तो अब जो है इस यूजर और स्टेटस में यूजर्स डॉट आइटम में इफ स्टेटस, सॉरी इफ यहाँ पर एक स्टेटस बनाएंगे फिर से, अगर स्टेटस का वैल्यू एक्टिव है जस्ट वेट, जस्ट a second, just a sec guys। हेलो सर। हेलो सर, हेलो। Sorry, I was replying a message there, so our foundation's director was messaging me that is why। so if user is active, status जो है active है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक और, अच्छा एक दो चीज तुम्हें बता देते हैं, बेसिक चीज याद रखना जिनको नहीं पता है। पाइथन में जो है
स्पेसेस और वैल्यूज का बहुत ज्यादा ही वैल्यू है, ठीक है। तो पाइथन में डिफॉल्ट 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन यूज करते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल आईडी वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारे चीजों को कर लेता है, ठीक है। ठीक है, और हम लोगों का ये एक्टिव यूजर एक एम्प्टी कलेक्शन था, डिक्शनरी था। तो जिस यूजर का स्टेटस एक्टिव होगा, हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिव यूजर का वैल्यू यहाँ पर स्टेटस बना देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो बताते हैं, चलो ठीक है। अब बारी बारी से इसको रन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इतने पे भी दिख रहा है, जूम पे सही चल रहा है ना, इतना जूम सही है सबके लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग यस सर। तो एक हम लोग यूजर को पहले इनिशियलाइज किए, ये हमारा हो गया, यानी कि ये कलेक्शन है। अब तुमको एक और चीज बता देते हैं यहाँ पर, प्रिंट टाइप। कल तुमको बताए थे कि ये भी चीज चेक कर लेना है, अगर मान के चलो कभी कंफ्यूजन है तो ये चीज भी तुम चेक कर सकते हो, इसका कलेक्शन का टाइप क्या है, ठीक है। यूजर्स बन गया, हमारा कलेक्शन बन गया। अब इसका हम लोग टाइप भी चेक कर लेते हैं, क्या है, डिक्शनरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये फंक्शन चलने के बाद ये हो गया। अब एक्टिव यूजर का एक फंक्शन चला, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन पूरे तरीके से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला, और हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन को बस सिर्फ और सिर्फ अभी चला रहे हैं, अभी हम लोग इसमें कुछ प्रिंट नहीं किए हैं, ठीक है। प्रिंट करते हैं, अब बताना कि क्या वैल्यू होगा यूजर्स का, ठीक है। और प्रिंट करते हैं, कोई बता सकता है कि अब क्या वैल्यू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुमको बताएं लूप कैसे करना है, इसके अंदर अभी मत जाना कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स में मत जाना, नहीं तो वहां पहुंचोगे तो पीछे का चीज छूट जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना इफ एल्स पे, फॉर पे, और आज कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट पे। बताओ यूजर्स का वैल्यू क्या होगा। यूजर्स में सारे यूजर्स का वैल्यू आ जाएगा शायद, और एक्टिव यूजर्स की जो डिक्शनरी में एक्टिव यूजर्स है वही है। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया वो पूछेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि आज जो है रेंज फंक्शन, आज क्विज नहीं आ रहा है तो हम लोग आज मल्टीपल चीज को कर सकते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज डिस्कस करने के लिए। तो आज पूरा कंडीशनल लूपिंग वगैरह खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जिनको देखो स्लो चलना है तो स्लो भी चल सकते हैं, फास्ट चलना है तो फास्ट भी चल सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग्स लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू सो। लेकिन फिर भी बताओ कि यहाँ पर किसी को है प्रॉब्लम कि इफ और एल्स कैसे हो रहा है और फॉर कैसे हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सबका क्लियर है, यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। चलो बताओ तो फिर बाकी सब, अगर सबका क्लियर है तो नाम हम किसी का नाम लेते हैं, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जरा पता करें। वाई नॉट क्लास डिक्शनरी, सेम ही चीज तो पूछ रहे हो भाई, क्या पूछ रहे हो तुम, वाई क्लास डिक्शनरी। ये डिक्शनरी क्लास को वो बना रहे हैं भाई, ये क्लास होता है। क्लासेस जब बनती हैं ये पाइथन के बैकग्राउंड में, ये डिक्शनरीज जो है ना क्लास है एक टाइप का। इस क्लास टाइप का जो है ना डिक्शनरी, जो है ना किस टाइप का यूजर है वो है। तो क्लास के अंदर जो इनहेरिट हुआ हुआ डिक्शनरी है, तो ये डिक्शनरी टाइप का क्लास है। कहने का मतलब अगर यूजर का जो क्लास है, यूजर का जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो डिक्शनरी है, और उसको जो है बैकएंड में प्रोसेस कर रहे हैं एज ए क्लास। तो भाई ये तो फिर गुइडो ऑन रोजम से पूछना पड़ेगा कि आपने इसको इस तरीके से प्रोग्राम में क्यों नहीं लिखा। लास्ट में रिपीट कर देना ना, फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ा रहा है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा जा रहा है। भाई देखो जा तो रहा है, ऑब्वियसली सबका जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूछने के लिए अनम्यूट करके पूछो, मैं मैसेजेस टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं एक नॉर्मल नाम लेता हूँ जिसका भी, ठीक है। और यहाँ पर चलो कौन कौन से लोग एक्टिव हैं जरा देखते हैं। अमन बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्लीज डोंट टेक दीज थिंग्स एज अ ग्रांट फॉर ग्रांटेड गाइज, प्लीज डोंट टेक। इफ आई एम
मैं रात में जो है अपने ऑफिस करता हूँ, फिर दिन में मैं तुम्हारे लिए प्रिपरेशंस करता हूँ, सॉफ्टवेयर को देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, तो प्लीज डोंट टेक इट एज अ ग्रांटेड। यूजर्स का वैल्यू बताओ अमन, कैसे होगा? अमन कुमार। यस सर। हाँ, सर इसका यूजर्स यूजर्स का में वैल्यू। सर यूजर्स में जो पूरा जो अभिज्ञान एक्टिव है सब सब हाँ हाँ दिखाएगा, और सर, एक्टिव यूजर्स में जो जो एक्टिव है सिर्फ उन्हीं का स्टेटस दिखाएगा, जो इनएक्टिव है उसको डिलीट कर देगा। ठीक है। अच्छा धर्मेंद्र, आई थिंक यू गॉट इट राइट। चलेगा? ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं, प्रिंट करते हैं। अब बोलो। पता चला क्या हुआ? इसीलिए हम तुमको बीच में नहीं टोके थे। इस वाले प्रोग्राम में भी ये क्या हुआ कि इस सारे चीजों को मैंने इसीलिए उस समय बोला था कि ये ओवरराइट करेगा, कॉपी करके ये ओवरराइट करेगा। ठीक है, तो अभी भी जब तुम प्रोग्राम रन करोगे तो वैल्यू तो यूजर्स का यही है। ठीक है, अगर यूजर्स का वैल्यू तुम प्रिंट करोगे, एक डिक्शनरी टाइप का है, इस समय अगर तुम यूजर का वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पर यूजर्स का वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, तो यूजर्स का वैल्यू तो अभी भी यही है। ठीक है, लेकिन जब तुमने यहाँ पर चेंजेस किए, उस यूजर्स को डिलीट कर दिया, जो जो इनएक्टिव यूजर थे, ठीक है, तो इसके बाद जो है वैल्यू जो है यहाँ पर तो भाई चेंज हो गया। ये देखो, अब यहाँ पर हम तुमको दिखाते हैं यूजर्स। अब यहाँ पर वैल्यू तो चेंज हो गया ना, सॉरी, अब यहाँ पर वैल्यू जो है यूजर का चेंज हो गया। ठीक है, ये सारा जो प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पर वैल्यू तो चेंज हो गया ना यूजर्स का। देखो, फिर एक्टिव यूजर्स में भी वही सेम चीज हुआ, यहाँ पर भी हम लोग वही परफॉर्म किए। रिगार्डलेस ऑफ क्रिएटिंग, हम लोग क्या किए कि बिना किसी इस यूजर को ओवरराइट किए एक नया डिक्शनरी बनाए एक्टिव यूजर का, उसमें ये डेटा डाल दिए एक्टिव यूजर्स को। और ऊपर क्या किए कि हम लोग उस समय मिस स्पेल्ड हो गया था मेरे से, उस इस वाले में प्रोग्राम में क्या हुआ कि हम सेम ही उसको कॉपी किए, लोकल अपने जब रन टाइम पे इसको कॉपी किए, उसके आइटम्स के ऊपर हम लोग इटरेट किए, ट्रेवर्स किए यूजर और स्टेटस चेक करते हुए, और क्या किए, जिन जिन इस यूजर का स्टेटस इनएक्टिव था उनको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो समझ में आया सबको? लूप समझ में आ गया, इफ एल्स समझ में आ गया? ये सब छोड़ो कि भाई डिक्शनरी क्या है, ये सब चीज जब हम आगे बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है सर, डॉट डॉट कॉपी लगाया है, दिख रही ये डॉट कॉपी लगाया तो है भाई, देखो तो सही। चलो एक और फंक्शन बताते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। किसी को अंदाजा है कि क्या बता रहे हैं? रेंज फंक्शन, ये पाइथन का रेंज फंक्शन है। ठीक है, एक टेबल प्रिंट करते हैं, चलो। फॉर आई इन रेंज 0 to 21, ठीक है, टू, अब हम इसको बताते हैं प्रिंट आई। चलो, कुछ पता चला किसी को भी क्या यहाँ प्रिंट हुआ? यस सर। सर 0 से लेके 22 के बीच में प्रिंट हुआ, दो के डिफरेंस पे। एग्जैक्टली, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमको लिस्ट को सरल अलग तरीके से प्रिंट करना पड़ेगा। जब दो दो का डिफरेंस लिए, 21 अगर लेते ना यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता कि 21 पे भी जाता, लेकिन दो का डिफरेंस कैलकुलेट नहीं होता, वो 19 पर ही रुक जाता। समझ में आया? इसीलिए हमने क्या किया कि 0 से 22 पर गए रेंज फंक्शन में। तो रेंज फंक्शन जो है क्या है कि अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर पे इटरेट करना है, ट्रेवर्स करना है, तो उस समय हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट जनरेट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जो अगर मैथमेटिक्स में अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टार्ट होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, एक एन एन नंबर होता है, वैल्यू होता है, और उसमें क्या होता है कि क्या उसका तुम्हारा फंक्शन है, मतलब क्या उसके बीच का तुम्हारा डिफरेंस है, तुमको वो लेना है। ठीक है,
तो इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर अगर 0 लिए थे, यहाँ पर अगर हम 1 कर देते हैं तो ये प्रॉपर 2 का टेबल प्रिंट हो गया। सॉरी, ये 1 से 22 पे गया, अच्छा ठीक है। ये प्रॉपर जो है 2 का टेबल यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर 1 से 22 पे गए तो 1 का वैल्यू नहीं आया, 1 को काउंट नहीं करेंगे, पता है, सॉरी 0 से जो है काउंट होता है, इंडेक्सिंग 0 से होता है। तो क्या होगा उस केस में कि यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बताया थे हम कि लास्ट में जो है वैल्यू छूट जाता है। तो 22 स्किप हो गया, ठीक है, और 2 पर आ गया, क्योंकि स्टेप भी 2 था, तो छूटेगा भी 2 के बाद ही। यानी कि जो हम बताए थे कल कि लास्ट में जो होता है, जो लिस्ट का लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी पूछो। ऐसा समझ गया। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में, हाँ, क्योंकि क्लियरली पूछना, देखो, क्योंकि मतलब अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि फ्लो में फिर हम बोल रहे हैं बार बार कि मैसेज नहीं ट्रैक तो कर रहे। सर अगर लास्ट पॉइंट एक्सक्लूड हो जा रहा है, अगर तो हमेशा मुझे वही डालना पड़ेगा एक्सक्लूड करके, या फिर उसके लिए इंक्लूड करने के लिए भी कुछ है? इंक्लूड करने के लिए क्या है, तो अगर हम यहाँ पर 20 डालते है ना, इसीलिए तो वो यस किए सर, थे, 20 डालते तो 18 हो गया ना। 18 अब ये तक प्रिंट तुम्हारे होता है। माइंड में, तो तुम्हारे माइंड में ये कैलकुलेशन तो चल रहा है कि भाई हमको टेबल प्रिंट करना है 2 का, हमको टेबल तो प्रिंट करना है 2 का। तो अगर हमको टेबल प्रिंट करना है 2 का तो नॉर्मली 2 से 10 तक का टेबल होता है, ठीक है, यस तो सर। इसको 22 कर दो, तो लास्ट का जो एक्सक्लूड हुआ वो 22 हो गया एक्सक्लूड, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग स्टेप को हटा देते हैं, अब क्या प्रिंट होता है देखो, 21 तक गया, क्योंकि स्टेप जो है डिफॉल्ट स्टेप इज 1। हमेशा याद यस रखना, यस सर। सर। रेंज फंक्शन में डिफॉल्ट स्टेप इज 1। एपी को फॉलो करता है रेंज, ये भी याद रखना, डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेप तुम्हें डिफाइन करना है तो स्टार्ट, याद रखना कल बताए थे, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट तुम्हारा 0 हो गया, स्टॉप 20 हो गया, स्टेप क्या लेना है 2, तो वो हो गया 2 इज ए स्टेप। एक चीज और याद रखना, इंडेक्स, स्टार्टिंग का इंडेक्स जो है हमेशा इंक्लूडेड रहता है और एंड का जो इंडेक्स होता है हमेशा एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टेप एज वेल। तो स्टेप जितना डिफाइन करोगे उसके बाद का उतने दूर का जो डिजिट होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब एक मान के चलो, चलो तुमको बताते हैं कि अगर हमको 5 से 10 के बीच का रेंज, 5 से 10 तुमको हम दिए हैं, 5 से 10 दिए हैं, उसके बीच का जो है तुमको पूरा वो प्रिंट करना है, लिस्ट बनाना है उसका, कैसे करोगे? ये प्रोग्राम था ना यहाँ पर, ये यस सर। फॉर बनाए थे, ठीक है। एक तरीका और भी है, बताते हैं क्या। लिस्ट, यही सेम प्रोग्राम को बता रहे हैं, लिस्ट, यहाँ पर रेंज, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 22 तक जाएंगे, 2 का स्टेप लेंगे, ठीक है, और इसको प्रिंट करेंगे। वहां पर फॉर में कितना लाइन ले रहे थे हम लोग? फॉर में कितना लाइन ले रहे थे? 2 लाइन का कोड था। Yes, जब हम तो लिस्ट लाइन। बना दिए, जब हम लिस्ट बना दिए, लेकिन ये है डिफरेंस, यही हो गया यहाँ पर डिफरेंस क्या, कि जब फॉर लूप हुआ तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंटरनली जो है अभी फास्ट दिख रहा है, जब प्रोग्राम के अंदर घुसोगे, उसके अंदर का चीज को विजुअलाइज करोगे तो दिखेगा भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब तुम यहाँ पर लिस्ट के थ्रू कर रहे हो तो ये क्या हुआ कि एक बार में ये लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, पहले रेंज, ठीक है, ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हुआ और इसके बाद पहले रेंज कैलकुलेट हुआ, इसके लिस्ट में कन्वर्ट होकर तुम्हें ये एज ए लिस्ट मिल गया, ठीक है। चलो इसका एक टाइप भी देख लेते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट डिफाइन किए हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पर ये हो गया। अब टाइप जिसका, जिसको प्रॉब्लम था वो भी टाइप वाले में देख लेना कि क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ए, सॉरी, तो यहाँ पर लिस्ट हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ ए लिस्ट हो गया। समझ में आया? चलो एक छोटा सा तुम्हें आंसर, एक छोटा सा क्विज है, हम सब लोग को दे देते हैं हम अपने एंड पे। क्विज करना है या फिर छोड़ दें? चेक सर करना है एज तो योर बताओ। विश। एज योर विश कर नहीं, चलो कर लेते दो हैं, सर। ठीक है। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे आ जाओ, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे आ जाओ फटाफट। चलो आज एक ही क्विज लेंगे, फॉर और एल्स हो गया तुम्हारा।
अब हमको लगता है क्योंकि आज थोड़ा सा हमारे पास मतलब हैंड नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स भी सर तो पढ़ेंगे। लास्ट में करवा दीजिएगा क्विज, लास्ट में पांचों का पांचों एक बार में दे दीजिएगा। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक्स। चलो ठीक है, लिस्ट समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, क्या क्या चीज तुम लोगों को समझ में आ गया? लिस्ट हो गया, रेंज हो गया, टाइप हो गया, डिलीट फंक्शन हो गया, जो स्टैटिक जो फंक्शंस हैं पाइथन के, फॉर लूप हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, इफ और एलिफ स्टेटमेंट हो गया, जिसको लैडर इफ और एलिफ जिसको हम लोग लैडर स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो भी हो गया। ठीक है, इटरेट कैसे करते हैं डिक्शनरी पे, वो भी हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसका नाम देते हैं, एक हम लोगों के पास लिस्ट है, मैरी हैज अ सॉरी यार ये क्या हो रहा है, लिटिल लैम, लिटिल, ठीक है, मैरी हैज अ लिटिल लैम। अब हमको जो है ना, अब बताओ इसमें जो है ना, ये जो है लिस्ट के साथ प्रिंट करना है, यानी कि सबका जो है ना वैल्यू भी इसका जो है क्या, इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करना है, लेंथ नहीं प्रिंट करना, याद रखना। हमको मैरी कौन से नंबर पे हैज कौन से नंबर पे है, ए कौन से नंबर पे है, और लिटिल और लैम कौन से नंबर पे है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फॉर आई एक हम लोग बनाए, आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए। यहां तक किसी को अगर नहीं समझ आया यहाँ तो पूछ लेना, थोड़ा सा ट्रिकी है। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, तो क्या है कि ए क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो लेंथ पहले हम लोग निकाल लेंगे ए का। तो कल हम तुमको लेंथ निकालना बताए थे, लिस्ट का क्या हुआ बताओ? ए का लेंथ क्या हुआ? 5 सर 5 5 इंटरेक्ट करो, हाँ ठीक है। 4 होगा, 5 और होगा कैसे होगा? सर, 5 कौन बोला 4? 5 होगा। भाई इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं भाई, कौन ठीक बोला है 4? सर, सर 5 बोले हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है। तो लेंथ क्या हो गया, पहले सबसे पहले क्या बताए थे, बॉडमास का रूल याद रखना, सबसे पहले इंटरनल वाला वो एग्जीक्यूट होगा, इंटरनल वाला। तो लेंथ ऑफ ए निकाल लिए, क्या हुआ, लेंथ ऑफ ए 5। ठीक है, अब क्या हो गया, असलियत में ये कुछ और नहीं है, ये एग्जैक्टली ये है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को अगर मान के चलो लेंथ यहाँ पर ना तुमको दिख रहा है, किसी दूसरे प्रोग्राम में तुम्हें पता ही नहीं होगा, एक नॉर्मल प्रोग्राम चलता रह रहा होगा और उसमें तुमको पता ही नहीं कि कितना एन नंबर ऑफ लिस्ट, अभी तुमको विजुअलाइज हो गया कि ए का वैल्यू 5 है। ठीक है, ए का लेंथ 5 है। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग एक रेंज फंक्शन से यूज करने से पहले, अगर उस लिस्ट के लेंथ पर ट्रेवर्स करना है, उस पर्टिकुलर ए के लेंथ पर ट्रेवर्स करना है, यानी कि 5 पर ट्रेवर्स करना है, तो इट इज समथिंग लाइक रेंज 5, याद रखना। तो ये कुछ भी नहीं है, लेंथ ऑफ ए इज 5, इट इज दैट इज वाई रेंज 5। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए हम लोग प्रिंट करेंगे आई का वैल्यू। ठीक है, आई का वैल्यू यानी कि 0 1 2 3 4। ठीक है, और वैल्यू प्रिंट करेंगे ए का क्या है वैल्यू। ठीक है, तो ए आई का वैल्यू 0 पे, आई यानी कि 0। ठीक है, ए ऑफ आई यानी कि मैरी, आई का वैल्यू यानी कि 1, तो वैल्यू हैज ए ऑफ आई विल बी हैज, दैट इज वाई। तो मुझे इसको एग्जीक्यूट करने दो, इसके बाद फिर बताते। ठीक है, देखो ये हुआ प्रिंट, ए का वैल्यू ये था, लिस्ट था, इसके हम लोग लेंथ पे ट्रेवर्स किए, यानी कि पहले इसका लेंथ निकाले, क्योंकि हम लोग को लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो इंडिसेस ऑफ द सीक्वेंस, तो हम लोगों को अगर इफ यू वांट टू इटरेट ओवर द इंडिसेस ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि ये इंडेक्स और या इंडिसेस बोलो, इसके ऊपर इस अगर सीक्वेंस पे तुम्हें इटरेट करना है, तो रेंज और लेंथ फंक्शन को कंबाइन यूज करके रेंज 5 बनाया। और इसके रेंज 5 के बाद एक आई हम लोग का इनिशियल वेरिएबल था, जिसको हम लोगों ने एट ए टाइम डिक्लेयर करा, और इसका आई ए ऑफ आई हम लोग बनाते जा रहे हैं, जिसके आगे क्या हो रहा है, प्लेस हो रहा है 0 ऑफ मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। चलो,
एक केस मुझे बताओ, अब यहाँ पर तो ये बेसिक बता दिए, अगर सिर्फ और सिर्फ हमको स्पेसिफिक चेक करना होता कि फोर्थ नंबर पे क्या है तो क्या करते? इफ कंडीशन लगा के हेलो, करते हैं इफ कंडीशन पे लगा के सब क्या करते? इफ सर ए ऑफ 4 यूज करते हैं करते हैं। ठीक है, सीधा चलो। प्रिंट ए ऑफ 4 कर देते इंडेक्स Yes, नंबर। sir. हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर प्रिंट करते। अभी क्या था कि तुमको इंडेक्स भी देखना था और उसके अंदर का नाम या फिर जो भी, अभी तो नाम है मैरी 1 2 3 4 जो भी कर रहे हैं, तो वो देखना था। दैट इज वाई हम लोग क्या करते कि उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देते। सिंपल सा है कि भाई ए की जगह पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, तो वो निकाल लो, सिंपल सा बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास आ रहा है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। सर आई का वैल्यू 1 से शुरुआत करना रहता है तो आर्क आई का वैल्यू 1 से शुरुआत यहाँ पर रेंज में तो ऐसे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगा ना तुम्हारा। आई का वैल्यू 1 से कैसे स्टार्ट करोगे तुम, क्योंकि यहाँ पर तुम जब रेंज 5 कर दिए, ठीक है, जब यहाँ पर ओके रेंज सर 5 कर दिए तो इसके बाद फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बता ना, क्योंकि ये तो ट्रेवर्स, अगर लिस्ट पे ट्रेवर्स ही होगा 0 1 2 0 से, इंडेक्स 0 पे ही ये स्टार्ट होगा कभी भी, ठीक है। यहाँ पर इस केस में इंडेक्स 0 पर ही स्टार्ट होगा, ये याद कर लो। अब तुम जब रेंज पे चेंज करोगे कि वो लूप करा रहे हो 0 2 3 4 करा रहे हो, है ना, 0 2 4 8, तब वहां वाले केस में जो है आई जो है 1, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक 1 करना है प्रिंट, सिर्फ तुमको हैज प्रिंट करना होता, जिसको तुम बोल रहे हो कि आई का वैल्यू 1 हो जाता, तो वही चीज तो तुमको बताए कि ए ऑफ 1 कर लो प्रिंट। नहीं नहीं 1 से स्टार्ट करना रहता है, जैसे 0 मैरी लिखा है तो 1 मैरी कर देता, ऐसे बोल रहे थे। उसके लिए फिर स्वाइपिंग होता है जो तुम चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम वाले जब सिस्टम पे जाओगे, वहां पर हम अभी डेटा स्ट्रक्चर तुमको नहीं बता रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि जब स्वैप करते हैं वैल्यू, इंडिसेस को स्वैप करते हैं कि मैरी का वैल्यू 1 हो जाए, तो उसमें फिर तुमको कोर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है डिफरेंट क्लासेस हैं, उसके लिए जो है फिर डिफरेंट जो बैचेस जो हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स का चल रहा है उसमें है, फिर वहां पर तुमको इनरोल करना पड़ेगा, वो लोग बताएंगे कि तुमको कैसे करना है, ठीक है। मेरा काम है पाइथन क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवॉप्स पे बताना, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवॉप्स बताने के लिए तुम्हें पाइथन का ओवरऑल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और अगर तुमको ये चीज जानना है तो देन यू विल हैव टू इनरोल इन सम अदर क्लास, लाइक मेल कर देना, उसमें देख लेना कि वहां पर क्या चल रहा है। मुझे डेटा स्ट्रक्चर वाले सिस्टम्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक है, तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सर्च करो तुम ही, बताओ फिर मुझे कल होके चलेगा। लेकिन मैं डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट को नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा काम डेटा स्ट्रक्चर में नहीं रहा है, क्योंकि मैं डेवॉप्स इंजीनियर हूँ और क्लाउड कंप्यूटिंग पे मेरा काम ज़्यादा रहता है, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स उतना नहीं देखता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर इसमें भी तुमको अच्छा कुछ तो प्रॉस एंड स्पोर्ट्स में कॉन्स है तो स्टैक और तुम क्यू सब नहीं चलेगा? हाँ, उसमें वो उन लोगों का अलग चल रहा है, वो सारा, वो तुमको पूरा ट्री और ये सब तक चलाएंगे वो लोग, पूरा कोर ओके डेटा स्ट्रक्चर वो चला रही है, वो प्रोजेक्ट डेवॉप्स की टीम चला रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कोर एसडीज हैं, मतलब उसमें से दो तो टीचर, दो जो हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, जो दो, मुझे पता नहीं है उनको उनको मैं प्योरली जानता नहीं हूँ, लेकिन दो जो है उसमें से एक बंदा जो है गूगल इंडिया में काम करता था और एक बंदा जो है पेटीएम में काम करता था, तो वो ओके दो लोग सर जो है वही चीज कराते हैं, ठीक है। ओके सर ब्रेक एंड कंटिन्यू, जैसे कि यहाँ पर पढ़ लोगे तो तुम्हारा बेसिक पाइथन चला जाए हो जाएगा, तो तुम उसको एक्सेल करना है तो वहां जाओ, उसमें जाओ, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स पे आते हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। देखो हम हाई लेवल के कोड्स हम भी लिखवाएंगे, लेकिन उसमें हम रिगार्डलेस ऑफ गेटिंग ऑन टू द डेटा स्ट्रक्चर्स, आई विल बी जस्ट गोइंग अहेड, ठीक है। मैं जीसीडी मैं भी बोलूंगा तुम्हें बनाने के लिए एक बेसिक सा, अभी जब मैं पाइथन बता दूंगा तो मैं एक बेसिक सा तुम्हारे सामने जो है बोलूंगा कि कोड करने के लिए, और तुम्हें एक कैलकुलेटर भी बनाना पड़ेगा जो साइंटिफिक बेस पे होगा, बेसिक कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा, जो भी चीज है। तो मैं एग्जैक्ट चीजें बताऊंगा कि पाइथन में प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक और स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में कौन कौन पहले से जानता है ये बता दो, सर कौन पूछ रहा आइडिया है है भाई? थोड़ा थोड़ा।
अभिषेक क्या पूछ रहे हो? वाई मीन्स अभिषेक विश्वकर्मा। Nothing, sir. नहीं, तुमने पूछा है वाई सर, दैट्स वाई। About DSA. About DSA, buddy, the thing is like no one is perfect in everything. So, and in a team, when you will be going ahead and working for a team, then सब लोगों के पास अपना अपना काम होता है, ठीक है। सब लोग एक दूसरे के काम में मिलजुल के काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर का कोई अलग कर रहा है, उसका और आर्किटेक्चर कोई अलग डिजाइन कर रहा है, ठीक है। सर्वर्स उनके लिए कोई अलग डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग पार्ट होता है। तो मैं इस पार्ट में अच्छा हूँ तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। डेवऑप्स और क्लाउड में तुम पूछो फिर कहाँ तक जाते हो, फिर देखते हैं हम। फिर तुमसे अगर तुम बोलोगे वहां पर, तो फिर हम तुमको बताएंगे कि फिर किस लेवल पे जो है डीएसएस से ज्यादा जरूरी, फिर वहां पर तुमको समझ में आएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स आर्किटेक्चर क्यों इतना जरूरी हो जाता है। सॉफ्टवेयर का कोड तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, सिंपल आज हम तुमको एक बात बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर का कोड कितना भी अच्छा हो, बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर लिखा हो, लेकिन अगर उस कोड के लिए सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, वो कभी भी जो है यूजर्स तक और एंड यूजर्स तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। अगर सिस्टम ही स्लो है, सर्वर का एक्टिविटी ही स्लो है ना, बार बार यूजर्स के कारण सर्वर डंप हो जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। दैट इज वाई। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट इज लाइक जस्ट ब्रेकिंग आउट ऑफ द इनर मोस्ट क्लोजिंग फॉर और वाइल लूप। फॉर और वाइल लूप जब हम लोग यूज करते हैं तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या होता है कि ये जो है ब्रेक और ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि जब तुम फॉर लूप चला रहे हो तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा वो पर्टिकुलर इनिशियल जो लूप चल रहा है उसके अंदर से पर्टिकुलरली तुम उसमें वापस आने के लिए यूज करते हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि तुरंत ही लूप में एग्जीक्यूट ये हो जाता है। अगर कोई भी लूप का जो है कंडीशन वेरीफाई हो जाता है ना, जो भी कोई भी कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं वो वेरीफाई हो जाता है, तो वो तुरंत वहां से बाहर आ जाता है, उसके आगे नहीं जरूरत है कि लेकिन बोलेंगे कि इफ यूजर इंटर्स द वैल्यू, ठीक है। एक यूजर, एक सिनारियो समझो कि एक यूजर ने वैल्यू इंटर किया, ठीक है। और अगर सिंपल सा बात है, एक सिनारियो ये कि यूजर वैल्यू इंटर किया और एक रेंज आ गया, हमने डिफाइन किया कि यूजर 1 से 10 के बीच में, ठीक है, 1 से 10 के बीच में कोई भी डिजिट इंटर कर रहा हो, तो अगर मान के चलो 9 पे इंटर किया यानी कि 10 इंटर किया था, तो हम लोग ट्रेवर्स करेंगे 1 से 10 तक ट्रेवर्स होगा। लेकिन अगर वो 2 इंटर किया था तो जैसे ही उसको कंडीशन मिलेगा वहां से वो तुरंत निकल के आ जाएगा बाहर, यानी कि बाकी को छोड़ देगा। तो ये एक टाइप है, इम्प्रूवमेंट है कि तुम कैसे कोड को इफिशिएंटली यूज कर सकते हो। इसके बाद आगे का लूप रन नहीं होगा जैसे ही कंडीशन मैच कर गया, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं फॉर नम, एक फॉर लूप बनाते हैं हम लोग फॉर नम इन रेंज का भी यूज किए थे हम लोग, रेंज 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अगर इफ num इज इक्वल टू 3, यानी कि num का वैल्यू, अभी यहां पर हम एक इनिशियलाइज किए वैल्यू num, और इसका रेंज यहां से 6 से 1 से लेके 6 के बीच में, तो नंबर जो है अगर 3 हो गया तो यहां पर प्रिंट करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ब्रेकिंग द लूप, ठीक है। और कौन से उस पे जाके नंबर पे लूप हुआ, नंबर पे ब्रेक हुआ, यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे और यहाँ से हम लोग ब्रेक लगाएंगे और यहाँ से हम लोग फिर उस पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक था, ये ब्रेक स्टेटमेंट इस बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा फॉर लूप में, अगर तुम फॉर के साथ नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो, फॉर के साथ इफ कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर रहे हो फॉर लूप में, तो जहां पर जिस जगह भी कंडीशन डिफाइन हो गया, कंडीशन मैच कर गया, जिस भी जगह पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, वो उसके आगे इटरेशन नहीं करेगा, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लगाते, कोई नंबर तुमको फाइंड करना होता तो इटरेट करता, वो वहां तक पहले पूरे जगह इटरेट करता,
इसके बाद तुमको नंबर खोज के देता। अब मान के चलो लिस्ट है जिसमें बहुत सारा नंबर है और उसमें जो है सिंपल सा बात है कि एक 1000 लोग का लिस्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसमें ना अभिज्ञान जो है 653 नंबर पे है, ठीक है। तो 1000 लिस्ट पे तुम क्या करोगे, लूप स्टार्ट करोगे, ठीक है, और वहां पर जैसे ही तुम एक कंडीशन लगाओगे, इफ नेम इज इक्वल टू अभिज्ञान, ठीक है, वो लिस्ट स्ट्रिंग का दे दोगे, वो वहां से क्या करोगे कि ब्रेक कर दोगे। तो अभिज्ञान जहां पर उसको मिल गया उसके आगे वो नहीं जाएगा, वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा, और क्या होगा कि वहीं तक स्टॉप होने के बाद तुमको वो नंबर लाके दे देगा। और किस जगह पे है वो एनोनिमसली, अभिज्ञान जो है ये भी नहीं पता चले कि कौन से प्लेस पे है। अब 1000 में कहीं पर भी अभिज्ञान हो सकता है, सिर्फ फाइंड करना है कि अभिज्ञान वहां पर आया, उसमें फाइंड किए और उसका तुम प्लेस भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, अनम्यूट करके बोलो नहीं आ रहा है। सर आज के लिए रहने दे सकते हैं, अब ऊपर से जा रहा है। भाई तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से नहीं होगा ना, मैं प्राइवेट ट्यूशंस तो दे नहीं रहा हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट ब्रेक और वो बताऊंगा, तो अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुम इवन यू कैन लीव। सो ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुक जाओ, कंटिन्यू बता रहे हैं, इसके बाद क्विज देंगे। समझ में सबको आया है? नहीं, अनम्यूट करो सब अपने आप को, है ना, बारी बारी से बोलो। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। Yes, समझ sir. में आ रहा है? यस सर। गर्ल्स में भी पूछ लेता हूँ जिसको नहीं आ रहा। देखो ये मत समझो, जिस दिन तुम्हें ये चीज कहने का मतलब है ना कि एक चीज से बता देते हैं, फ्री में अगर कुछ चीज मिल रहा है तो उसका वैल्यू बनाओ। कहने के लिए सांस लेने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा वैल्यू करो, तुम्हारे कॉलेज में काम आने वाला है, तुम्हारे आगे जब तुम भले तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, लेकिन तुम क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवॉप्स के आर्किटेक्चर को समझ जाओगे तो जॉब लेने में तुम्हारे लिए भाई फिर तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस रास्ते जाना है। तुम्हारे पास एटलीस्ट यू विल हैव अ स्किल, तुम्हें पता होगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, तुम्हें पता होगा कि एप्लीकेशंस के लिए ये सारे चीजों को तुम समझ कर जो है जेनकिंस के पाइपलाइन के लिए, जो जेनकिंस के शेयर्ड पाइपलाइन होते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी होता है, उनके लिए तुम डिफाइंड फंक्शनैलिटी बना सकते हो। इन सब चीज को बताएंगे तो पाइथन जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है उनको समझने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या कंडीशन मिसमैच हुआ तो वो उसको छोड़ेगा, ठीक है, और उसको छोड़ के स्किप करेगा उस इटरेशन को और फिर मूव करेगा दूसरे इटरेशन पे, ठीक है। तो आउटपुट जो है तुम्हारा, इसका आउटपुट तुमको दिखा देते हैं क्या होता है। ये पहले रुक जाओ, सॉरी, यहाँ पर फाइल ब्लाइंड ब्रेक, इसको एज ए फाइल चलाना पड़ेगा, इसको एज ए फाइल चलाते हैं। इफ प्रिंट यहाँ पर, ठीक है, चलो ओके, फॉर नम इन रेंज 1 of 6, ठीक है, इफ नंबर इज इक्वल टू 3, प्रिंट ब्रेकिंग द लूप, नम एग्जिट्स द लूप, ठीक है, प्रिंट ऑफ द नम। ओके, सिंटैक्स एरर यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये चल रहा है, ठीक है, हो गया। वो थोड़ा सा कंपाइलर में इशू आ रहे हैं, दिख रहा है सबको कहाँ पर हुआ? और सेम ही प्रॉब्लम करते हैं अब, इसी सेम को हम लोग कंटिन्यू के साथ, जैसे ही ब्रेक यहाँ पर कंडीशन मैच हुआ, इसके आगे बढ़ा ही नहीं, वो प्रिंट ही नहीं किया बाकी का लिस्ट। 1 2 और 3 पे लूप हुआ, 3 पे ब्रेक हुआ, ठीक है, और इसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और ये आगे बढ़ गया, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग एक चीज पे और, कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, ठीक है, अगर इफ i इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग स्किप करेंगे। अगर i का वैल्यू प्रिंट हो जाए, i का वैल्यू 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे, स्किपिंग द नंबर, जिस नंबर को स्किप किए, ठीक है, उसका वैल्यू, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू किए, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाए और इसके बाद इसका वैल्यू
प्रिंट किए। देखो यहाँ पर जैसे ही तुम प्रेस इंटर करोगे ना, ये इंडेंटेशन से अपने आप बाहर आ जाएगा। ये भी चीज समझो कि यहाँ पर कितना फाइन ग्रेडेड है, आईडीज कितने स्ट्रांगली बनाए हुए हैं, पाइथन कितना फाइन ग्रेडेड है कि हम यहाँ पर जाके नेक्स्ट लाइन पे क्लिक नहीं किए थे, ठीक है। इसको हमें बताने का जरूरत नहीं पड़ा था, इसको समझ में ऑलरेडी इंटरनली आया कि ब्रेक है, तो ये इस तरीके से इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये प्रिंट में आएगा। यानी कि ये मतलब इनलाइन स्टेटमेंट्स में जो है यहाँ पर ये फॉर के इनलाइन में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नम को प्रिंट करते हैं अब, ठीक है, आई को प्रिंट करते हैं, क्या आएगा आंसर बताओ? सर 4 को छोड़ के बाकी सारे नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 2 3 और 5 और यहाँ पर तो 5 नम होगा। हम लोग इंटेंशनली प्रिंट कर रहे हैं ना, सॉरी, यहाँ पर तो मान के चलो कि स्किप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज जो है, ये चीज हम नहीं डालें, ठीक है। ये तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ये चीज नहीं डालो। इफ आई इज इक्वल टू 4 कंटिन्यू करोगे, अब अनइंटेंशनली, उस समय तो इंटेंशनली डाले थे तुमको विजुअलाइज कराने के लिए कि 4 स्किप हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 4 स्किप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से जो है ब्रेक हटा देते हैं, यहाँ से ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देते हैं। अब यहाँ से तुमको दिखाते हैं क्या हो रहा है, देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक डॉक स्ट्रिंग लगा देते हैं, द एक डॉक स्ट्रिंग लगा दिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए यहाँ पर कि 1 और 2 प्रिंट हुआ था तुम्हारे उसके लिए, ब्रेक के लिए, और 1 2 3 5 प्रिंट हुआ 4 के लिए। तो जैसे ही 3 का कंडीशन मैच हुआ, ब्रेक हुआ, और क्या हुआ कि वो लूप एग्जिट हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू का यूज किए कि आई का वैल्यू 4 हुआ, 4 को स्किप किया, छोड़ दिया, उसके आगे का इटरेशन लेना शुरू किया, तो 3 और 5 आया। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अब जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, और सब लोग पोर्टल पे आ जाना, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। सर बोल रहे थे ना कि उस टाइम थोड़ा सर्वर इशू हो गया था, सबरान बोल रहे थे एक बार अभी क्यूज ले लीजिए ना सर। छोड़ दो आज सर, सबरान, मैंने सबको बोल दिया है छोड़ देने के लिए। अच्छा हाँ, उस टाइम बोले थे सर सबरान की तरफ से आज छोड़ देने के लिए। ठीक है गाइस, तुम लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, और सब लोग जितने भी लोग हैं, अच्छा इसमें से कितने लोग हैं ऐसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो सब लोग इतने में से कितने हो गया? सत्यम कुमार क्या बोल रहा है? नो सर, ठीक है। पुनीत अनम्यूट करो, पूछो, सब लोग हाथ उठा के मत रुको, ठीक है, पूछो क्वेश्चंस पूछो, मैं उतने बोल रहा हूँ कि बार बार हाँ पूछो। कृतिका पूछो पूछो पूछो, अनम्यूट करो, पूछो। क्या पूछ रहा है सर? आई इन रेंज 0 to 2, ये लिस्ट ही क्यों बन रहा है? रेंज इज अ टाइप ऑफ, रेंज जो है लिस्ट का क्लास है। रेंज जो है वो लिस्ट का क्लास है। अगर तुमको कोई और डेटा टाइप बनाना होगा तो फिर उसको तुमको इंटरनली मॉडिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर कहाँ लिस्ट बन रहा है? यहाँ पर देखो, ये कहाँ लिस्ट बन रहा है? जब हम यहाँ पर आई से लेके यहाँ पर 1 से लेके 6 पे गए, तो ये रेंज कहाँ, लिस्ट कहाँ बन रहा है? और ये वाले में कहाँ पर लिस्ट बन रहा है? ये हमको तो दिखा ही नहीं। फॉर आई इन रेंज कोई बता सकता है यहाँ पर कि, और आई इन रेंज वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे, ये यहाँ पर ये रेंज बन रहा था, ये लिस्ट बन रहा था? यह लिस्ट बन रहा था जब हम लिस्ट डिफाइन कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन नीरज आप भेजे हैं, इसमें कौन जवाब दे सकता है? नीरज को जरा बताओ। सही लिस्ट नहीं था। कहाँ लिस्ट था? कुछ तो डेटा टाइप था ही नहीं उसका। इसमें तो टेबल प्रिंट हुआ था 2 के डिफरेंस में, 0 से लेके वो सेकंड वाले केस में बताए थे, नीचे भी तो कोड देखो नीरज, ए इज इक्वल टू लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं तब बता रहे हैं उसको हम लोग इंटेंशनली, फिर लिस्ट बनाए हैं उसको, वो बोले थे, वो बोले थे। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में तो बाद में रुकना, जब सब लोग लीव कर देंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, इनमें से कितने सारे लोग हैं जो गिटहब पे एक्टिव हैं, गिटहब चलाते हैं या गिटहब चलाने आता है? सर गिटहब नहीं तो आता नहीं है? बना है। नहीं आता है, चलो ठीक है। आता तो है एक सर, एक्टिव सैटरडे है। के दिन उस दिन कुछ अलग पढ़ाएंगे। सर मेरे सैटरडे पास को मुझे बताना
सैटरडे को मुझे बताना। सब लोगों को गिटहब का अलग से क्लास बताएंगे। ये डेवॉप्स से पहले डेवॉप्स में बताना चाहिए था, लेकिन अभी तुम लोगों को कोड देंगे भी कैसे? तो हम तो कोड जाके गिटहब पे अपलोड करेंगे ना। तो गिटहब पे हम ये कोड अपलोड कर देंगे, तुम्हें कोड मिल जाएगा, या फिर हम एज ए फाइल अपलोड कर देंगे। नोट्स वाले जैसे टाइप में फाइल में बोलोगे तो वो भी अपलोड कर देंगे पोर्टल पे, वो चलेगा। एक सारा कोर्स व्हाट्सएप के थ्रू भी हो। व्हाट्सएप के थ्रू कौन बोल रहा है? जी सर, मैं व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा सर। सबसे बढ़िया हाँ। रहेगा गिटहब के थ्रू आप अपलोड कर दीजिएगा, इजी रहेगा। हाँ इजी रहेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को नहीं पता है उस गिटहब कैसे है, तो उन लोगों को बताना भी पड़ेगा। ठीक है, क्लास एंड हो चुका है। ठीक है, हम क्विज दे रहे हैं, आप लोग आ जाइए अपने अपने स्क्रीन पे। जितने लोग भी हैं 73 तो हैं अभी, है ना। सब लोग खोल लीजिए, क्योंकि हम अपने जा रहे हैं सिस्टम पे जहाँ से क्विज पोस्ट करेंगे। तो क्लास एंड हो चुका है, रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं। और